Hello, dear students, good morning. Students, let's start reading the last part of this chapter. The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire populations of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hunts unless population control is given topmost priority. The population of India is estimated to be 920 million. 920 million means 920 million means 92 crore. So this the population is estimated in the year of 1994. Since the author of this chapter, Nani Palkhiwala, writes his article which is published in the newspaper The Indian Express on 24th of November 1994. So in the year of 1994, the estimated population of our country remains at the figure 92 crore. Which is considered more than the entire populations of Africa and South America put together. If the population of the country Africa and the South America, okay, if the populations of Africa and South America, okay, if the population of the continent Africa and the continent South America, if the populations of both the continents entire populations of both the continents is put together, so it would be less than the population of India. It is told to us by Nani Palkhiwala in the year of 1994. वर्ष 1994 में अनुमानित तौर से भारत की कुल आबादी, कुल जनसंख्या 92 करोड़ आंकी जाती है। 92 करोड़ के आसपास दिखाई जाती है, 92 करोड़ के आसपास होती है। 1994 में भारत की कुल आबादी कितनी होती है? 92 करोड़, जो कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीपों को यदि मिलाकर के उन दोनों महाद्वीपों की कुल जनसंख्या को यदि एक साथ रख दिया जाए तो भी भारत की जनसंख्या उन दोनों महाद्वीपों से कहीं ज़्यादा अधिक रह जाती है, ऐसा वो बताता है। नो वन फैमिलियर विद द कंडीशंस इन इंडिया वुड डाउट द पीपल हु आर वेल नोन टू द प्रिवेलिंग ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वुड नेवर शो एनी सस्पिशन over the matter that the hope of people would die in their hungry hutments, that the people's hope, that the dreams of all the people would surely get unfulfilled, remain unfulfilled, okay, and their dreams and their hopes will also surely get died in their hungry, poorly built cottages in which they had been living for a long time with their large number of people, family members, unless population control is given topmost priority. Given topmost priority. If the population is not controlled very soon, if the population control is not given topmost priority, so people would die hungry in their little huts and cottages. नानी पालखीवाला ये कहता है कि जिन लोगों को इस प्रकार की स्थिति के बारे में सब कुछ जानकारियां हैं, जो लोग इस प्रकार की स्थिति को समझते हैं, वो भारत में रहने वाले वे सभी लोग जिनको इस प्रकार की सभी बातों की जानकारी है, वो इस बात को लेकर कहीं कोई संदेह जाहिर नहीं करेंगे, शक जाहिर नहीं करेंगे कि यदि भारत में जनसंख्या नियंत्रण को टॉपमोस्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, सर्वोपरि प्राथमिकता नहीं जाती है, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो भारत में रहने वाले अधिकांश लोग अपने कच्चे छपरों में, घरों में ही, वहीं पर गरीबी में ही मर जाएंगे। उनको उस गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पाएगा। They would never find the way of coming out of their grinding poverty, and they would never be able to fulfill their dreams
they would never be able to fulfill their hopes of life, the hopes of their life, the hopes of their life, until and unless they don't control the growing population of the country. For the first time in human history, we see a transcending concern, growing tension and worry. For the first time in human history, in the year of 1994, Nani Palkhiwala observes that the people of this world, that the people living in different parts of the world have started showing their concern. Concern means chinta. Have started expressing their concern, their tension and worry over the matter of growing population and the fast depleting resources of nature. The survival not just of the people, the entire population of the humanity, the human society, all the people have started showing their concern, not for the survival of the, not only for their survival in the world, not just of the people but of the planet, but they have also started expressing their concern over the matter of endangering existence of the planet. यानी पहली बार मानव इतिहास में मनुष्य की सोच में, मनुष्य के दिल और दिमाग में बढ़ती हुई इस चिंता को देखा गया है, जिसने न केवल लोगों के सर्वाइवल, लोगों के जीवित रहने के प्रति अपनी चिंता जाहिर की है, बल्कि इस पृथ्वी के, इस धरातल के, इस धरती माता के, इस पृथ्वी के जीवित रहने को लेकर के उसने चिंता जाहिर की है। बड़ा कंसर्न हो गया व्यक्ति। नानी पालखिवाला राइट्स इट वेरी hopefully that the people of the world have been so much concerned, worried regarding their own survivability and the existence of the survivability of the planet also in the world. We have begun to take a holistic view of the very basis of our existence. Now we the human beings have started realizing our own responsibilities regarding our long existence. हम सभी मानव जाति के लोगों ने हमारी अपनी लंबे अरसे तक के लिए इस पृथ्वी पर बने रहने के प्रति, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के प्रति हमने अपनी चिंता और हमने अपना एक व्यापक स्तर का विचार बनाना शुरू कर दिया है। होलिस्टिक व्यू स्टैंड्स फॉर a very widespread thought, or you may say a very wide and very variable thought. चिंता से जुड़ा हुआ कोई एक विचार, जिस विचार को लेकर के व्यक्ति काफ़ी समय तक सोचता रहे एंड उसके बारे में बार बार ध्यान देता रहे। The environmental problem does not necessarily signal our demise. Demise stands for death. The environmental problem, the problem which is growing in the environment, does not signal us about our approaching death. पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति हमारी आने वाली मृत्यु का इशारा नहीं करती है। It is our passport for the future. It is our passport for the future. But it is the passport. It also works as a passport for the future generation. This the environment problem does not necessarily signal to our demise, but it works as a passport for our future also. ये हमारे वर्तमान समय में हमारी जिस प्रकार की अस्तित्व बना हुआ है, एग्जिस्टेंस जो बनी हुई है, उस एग्जिस्टेंस को लेकर के जो हमारा खतरा बढ़ता जा रहा है, उसके प्रति हमारे को चिंता में नहीं डालता है, समस्या में नहीं डालती है ये समस्या, पर्यावरणीय समस्या, लेकिन ये भविष्य के प्रति भी एक बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए एक पासपोर्ट के रूप में काम करती है, एक अनुमति पत्र के रूप में काम करती है। दोबारा देखना इसको। द environmental problem does not necessarily signal our demise, it is our passport for the future. This the environmental problem. Globally people face a lot of environmental problems. So this the environmental problem does not necessarily signal
our death, but it also works as a very important document for the future, because it also tells us that the future of the coming generation is also being endangered by all of us, by all human beings. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. Now it is also mentioned here that the emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. अभी हाल ही में दिखाई पड़ने वाला द इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड विजन, अभी हाल ही में दुनिया के लोगों का जो ये नया एक जो विजन जो सामने आ रहा है, नया जो दृष्टिकोण जो उभर करके आ रहा है, तो हाल ही में पूरे विश्व का उभर करके आ रहा है नया दृष्टिकोण। इस नए दृष्टिकोण ने क्या कर लिया है? हैज असर्ड इज ए वर्ड मीन्स सोड, SHOWED सोड, SHOWED सोड, हैड असर्ड इन द एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसने हमारे को एक नया रास्ता दिखाया है, वो है जिम्मेदारी का युग। एरा मीन्स युग, एज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ल्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सभी लोगों ने जिम्मेदारी के इस युग को अपने हाथ में संभाल लिया है। इट इज ए होलिस्टिक व्यू, इट इज ए होलिस्टिक व्यू। ये बड़ा ही वाइड स्प्रेड एटीट्यूड है लोगों का, मानवता के लोगों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा लिया गया यह एक बहुत बड़ा अपने आप में एक व्यापक दृष्टिकोण है, एंड इकोलॉजिकल व्यू। और यह न केवल एक व्यापक दृष्टिकोण है, लेकिन ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी एक दृष्टिकोण है। सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड, जो कि पूरे विश्व को एक संगठित रूप में देख रहा है, होल रादर देन ए डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स, डिसोसिएटेड मीन्स डिसइंटीग्रेटेड, ब्रोकन। बजाय कि विश्व को विखंडित भागों में देखने के, बजाय कि विश्व को विखंडित भागों में, टूटे हुए भागों में देखने के, आज विश्व के सभी लोगों ने एक साथ खड़े होकर के और अपनी जिम्मेदारी के इस युग को समझना शुरू कर दिया है। जिम्मेदारी के इस युग को उसने आरंभ कर दिया है। इंडस्ट्री हैज ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। नानी पाल खेवला राइट्स दैट इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व के जिम्मेदारी के इस नए युग में उद्योग ने भी एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। उद्योग की भी अपनी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका बनती है। इंडस्ट्री हैज़ ए मोस्ट क्रूशियल रोल टू प्ले, उद्योग के पास भी एक बहुत अच्छी अहम भूमिका निभाने के लिए, बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका निभाने के लिए उसके पास अपने कुछ उत्तरदायित्व हैं, उसके पास अपने कुछ जिम्मेदारियां हैं। यदि इंडस्ट्री चाहे तो इंडस्ट्री भी इस पर्यावरणीय स्थिति को सुधारने में बहुत बड़ा अपना सहयोग कर सकती है, ऐसा नानी पालखीवाला लिखता है। इन दिस स्टेटमेंट, थ्रू दिस स्टेटमेंट नानी पालखीवाला टेल्स अस दैट it is industry which can also play a very significant role in controlling the growing pollution in the environment and reforming the deteriorated condition of the earth and other ecological system. What a transformation would be effected. Generally the word effect works as a noun, but here the word has been used as a verb better. So the word effected means produced, implemented, started, produced, set up. What a transformation would be produced, किस प्रकार का एक नया बदलाव देखने को मिलेगा, किस प्रकार का एक नया बदलाव उत्पन्न होगा। If more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. DuPont नामक कंपनी के चेयरमैन, जिनका नाम था मिस्टर एडगर एस वुलर्ड, श्रीमान एडगर एस वुलर्ड नाम के उस चेयरमैन के द्वारा 5 वर्षों पहले यानी 1994 में लेख लिखा गया। तो 1994 से 5 वर्ष 1989 तो 1989 के दौरान में श्रीमान मिस्टर एडगर एस वुलर्ड ने 5 वर्ष पहले अपने आप को कंपनी का एक
अहम पर्यावरणीय अधिकारी, मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी के रूप में उसने अपने आप को इस प्रकार से डिक्लेयर घोषित किया था। और यदि वो कहता है कि देखो, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी इफेक्टेड इफ मोर बिजनेसमैन शेयर्ड द व्यू, किस प्रकार का एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा इस पर्यावरणीय स्थिति में यदि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी लोग, इंडस्ट्री चलाने वाले जो बिजनेसमैन लोग हैं, वे सभी लोग डी पॉन्ट नामक कंपनी के चेयरमैन श्रीमान एडगर एस वुलर्ड, जिसने 5 वर्षों पहले अपने आप को कंपनी का मुख्य पर्यावरणीय अधिकारी घोषित किया था, उसके अपने उस विचार को साझा करते हैं। If more and more businessmen, if more and more industrialists worked and declared for the benefit of the environment and declared themselves as to be the chief environmental officers, so how much changement, how much transformation, how much changement would be introduced in the overall condition of the deteriorating health of the environment if all the businessmen shared the thought of that the chairman of DuPont, Mr. Edgar S. Woolard, who declared himself to be the company's chief environmental officer just in the year of 1989। 1989 में DuPont नामक कंपनी के चेयरमैन ने अपने आप को कहा था कि मैं कंपनी का प्रधान, मुख्य जिसको कहते हैं प्रधान पर्यावरणीय अधिकारी के तौर पर उसने अपने आप को घोषित किया था। और उसके घोषित करने का मकसद ये था कि उसने पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ काम जरूर किया होगा। ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर रिक्वायर्स, उसने ये भी कहा था कि एक अग्रिम मैन्युफैक्चरर क्या होता है, निर्माता होता है। एक अग्रिम निर्माता के तौर पर हमारी अपनी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अपना अस्तित्व है, उसको बनाए रखने के लिए रिक्वायर्स दैट वी एक्सेल इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, तो ये उसके लिए ज़रूरी बनता है कि हम सभी के सभी लोग पर्यावरणीय परिस्थितियों में सुधार करें, पर्यावरण की स्थिति को, पर्यावरण की परफॉर्मेंस को ज़्यादा से ज़्यादा सुधारें, ताकि हम सभी इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन यदि एक साथ होकर के पर्यावरण की स्थिति को सुधारने में अपना सहयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन और बढ़ेगा और हम लंबे समय तक इस दुनिया में अपने आप को टिका पाएंगे और काम कर सकेंगे। ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ हर प्राइम मिनिस्टरशिप, मार्गरेट थैचर जो है वो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान की बातें बताई जा रही है कि प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान में मार्गरेट थैचर ने अपने जो स्टेटमेंट्स कही थी उन सभी स्टेटमेंट्स में से नन हैज पास्ड सो डिसाइसिवली, द वर्ड डिसाइसिवली स्टैंड्स फॉर बेटा रेजोल्यूटली, डिसाइडेडली, रेजोल्यूटली का मतलब प्रबलात्मक ढंग से, फोर्सेबली, इनटू द करंट कॉइन ऑफ इंग्लिश यूसेज, इसको यूसेज पढ़ा जाता है। वो कहती है, ऐसा बताया जाता है नानी पारखेवाला के द्वारा कि अपने प्रधानमंत्री पद के दौरान मार्गरेट थैचर ने जिस प्रकार की अपनी स्टेटमेंट्स की थी उन सभी स्टेटमेंट्स में से अंग्रेजी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्दों में से कोई भी ऐसा एक शब्द अभी तक इतना अच्छा बन करके नहीं आया है एज हर फेलिसिटियस वर्ड, फेलिसिटस वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रेचुलेटरी वर्ड्स, एज हर फेलिसिटस वर्ड्स मीन्स कॉन्ग्रेचुलेटरी वर्ड्स का मतलब धन्यवाद से जुड़े हुए शब्द, वेल चूजन वर्ड्स, वेल विशिंग वर्ड्स, ओके, वेल चूजन वर्ड्स, वेल विशिंग वर्ड्स। फेलिसिटस वर्ड्स मीन्स कॉन्ग्रेचुलेटरी वर्ड्स का मतलब बधाई से संबंधित शब्द, ऐसे शब्द जिनको बधाई देना स्वाभाविक बनता है। इस पूरे पैसे को ढंग से समझिए। मार्गरेट थैचर ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान में बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही, जिन स्टेटमेंट्स में से सबसे ज़्यादा बधाई पाने के योग्य उसके जो अपने शब्द थे वो शब्द ये थे, जिन शब्दों को अंग्रेजी भाषा में बोला गया था। तो वो कहता है कि नानी पारखेवाला कि शायद
इस प्रकार के शब्दों को कभी अंग्रेजी भाषा के डिक्शनरी में, अंग्रेजी भाषा में कभी प्रयोग किया हुआ नहीं देखा था पहले कभी। इतने ज़्यादा प्रबलात्मक शब्द उसने बोले थे। वो के शब्द क्या थे? नो जनरेशन हैज़ ए फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी पीढ़ी का स्वतंत्र प्रभार से कोई कब्जा नहीं है। फ्री होल्ड का मतलब स्वतंत्र प्रभार से कब्जा, ऑक्यूपेंस। किसी भी पीढ़ी के लोगों का इस पृथ्वी के ऊपर अपना पूर्ण रूप से विशेषाधिकार नहीं है, पूर्ण अधिकार नहीं है। ऑल वी हैव इज ए लाइफ टेनेंसी। हमारे पास जो कुछ भी आज है वह हमारे अपने जीवन के लिए दिया गया एक किराया पट्टा है। टेनेंसी स्टैंड्स फॉर ए डॉक्यूमेंट विच इज गिवन टू ए टेनेंट विद ए फुल रिपेयरिंग लीज। हमारे को जो किराए का पट्टा मिला है उस किराए के पट्टे पर हम यहाँ पर रह रहे हैं पृथ्वी पर, और हमें ये कह करके एक पट्टा दिया गया है कि आपको इस पृथ्वी के ऊपर जहाँ भी कोई टूट फूट होगी उस टूट फूट को आपको दूर करना पड़ेगा। लीज मीन्स क्या होता है? द वर्ड लीज स्टैंड्स फॉर बेटा रेंटल प्रॉपर्टी होता है। तो विद ए फुल रिपेयरिंग, उसने ऐसा हमें कह करके हमारे पूर्वजों ने हमें इस पृथ्वी पर हमें जन्म दिया है, हमें यहाँ पर रहने के लिए कहा है कि हमारी अपनी जो ये रेंटल जो प्रॉपर्टी है अर्थ, इसके अंदर जहाँ भी कहीं कोई गड़बड़ है उसको हम सुधारें और उसको हम समय समय पर ठीक करते रहें, उसके स्वास्थ्य में सुधार करते रहें। इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर लेस्टर ब्राउन, श्रीमान लेस्टर ब्राउन के शब्दों में ऐसा कहा गया है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हमें ये पृथ्वी हमारे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली है। हमें अपने पूर्वजों से यह पृथ्वी विरासत में मिली, ऐसा नहीं है। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने अपने पूर्वजों से ये जो पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे रह रहे हैं, ये हमने विरासत में नहीं मिली है, यह हमने अपने पूर्वजों से अपने बच्चों के लिए उधार ली है। हम अपने बच्चों को फिर उनके अपने बच्चों के लिए उधार दे देंगे, भाई आप इस पृथ्वी पर रहिए और आप आने वाले अपने अगली पीढ़ी के बच्चों के लिए इसको अपने पास बना करके रखिए, इसमें निरंतर सुधार करते रहिए। इस प्रकार की बातें यहाँ पर कही गई हैं। बेटा दिस द चैप्टर इज एंटायरली फोकस्ड ऑन द फास्ट ग्रोइंग प्रॉब्लम्स इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, एनवायरनमेंट, and the author has also suggested us how we all can improve the deteriorating condition of the earth and the environment, and we all should be badly concerned to see the present day condition of the environment and the natural resources, so that we can see and we can extend our existence on this earth for a long time, and we can also ensure the forthcoming generation their survivability on this earth without any problems and difficulties. So beta this the chapter has been completed. Now I would like to provide you the answers to the exercises, textual exercises of the chapter number 4th and the chapter number 5th, and the two poems, poem number 2nd, poem number 3rd. Maybe tomorrow and tomorrow next day. Thank you. And revise the learnt part of this chapter and read it very nicely by yourself also. Thank you.